Assalamu alaikum students, can you guys hear me now? Okay, perfect. If you guys remember last week, last Sunday, we were discussing a past paper question. In fact, we were covering the writing section of your SAT examination. And in that discussion, we were having a couple of issues because you guys are new to the concept of jumbled paragraphs. So I decided to discuss a couple of questions which are based on jumbled paragraphs. इसमें आपको multiple sentences दिए जाएंगे. यहाँ आप देख सकते हैं sentence 1, 2, 3, 4 करके 4 sentences mentioned हैं. और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 sentences को किस order में rearrange करना चाहिए एक ऐसे अंदाज में कि coherent transition हो. Now, before we get on to this question, there are a couple of things that I want you to understand. First things first. Of course, when you're talking about the start of a paragraph, usually what happens is in the first paragraph, you have a definition or you have a thesis. You have the main idea usually in the first or the last paragraph. ठीक है, या तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में, या फिर लास्ट सेंटेंस के अंदर एक थीसिस होना चाहिए. मेन पॉइंट का जो जिक्र है ना, वो या तो फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में होता है. यूजुअली फर्स्ट पैराग्राफ में होता है. You must be aware of the fact that sentences which have pronouns usually are not the initial few sentences of a paragraph. ठीक है, why? Because a pronoun by definition is a replacement of a noun. So यकीनन अगर किसी सेंटेंस के अंदर predominantly pronoun इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये इस बात की दलील है कि वो प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा और उस नाउन का जिक्र प्रोनाउन से पहले आया हुआ होगा. Okay, so the second thing that I want you to understand is that sentences with pronouns predominantly are usually not the one of the initial sentences. वो usually later part में आते हैं paragraph के. तीसरी चीज जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड सेंटेंस जो है वो एक कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है. बट दिस इंडिकेट्स द फैक्ट कि यूजुअली कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शंस के साथ पूरे पैराग्राफ को हम स्टार्ट नहीं कर सकते. व्हाई? Because as you know, a contrast conjunction shows a change in direction of the sentence or a change in direction of the idea. मतलब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है पैराग्राफ में उसका बरक्स, उसका कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, because we have a contrast conjunction here. So process of elimination is something which really helps, to be very honest. Okay, process of elimination is something that is very 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 beneficial in most cases. अब क्योंकि आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस. ओके, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा है, हैंग ऑन, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है और आपको ये बात पता है कि 3 में कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन से बात स्टार्ट हो रही है. यू नो फॉर श्योर कि 3 कैन नॉट बी योर आंसर, मतलब सी कैन नॉट बी योर आंसर. ओके, सिमिलरली व्हेन यू लुक एट द अदर सेंटेंसेस, सम इवन से, आप ये चेक कीजिए, सम इवन से, which basically shows that this is the latter part of your argument. Acha, there's a difference in words. Let me just write this down. Latter or former opposites हैं एक दूसरे के. Okay, I'm not writing later. Later is something else. Latter is something else. और letter is something else. ये तीनों अलग अलग अल्फाज हैं. Letter is खत, later is बाद में, and latter is that thing which is mentioned बाद में. ठीक है, फॉर्मर पहले मेंशन किया जाता है, लेटर बाद में मेंशन किया जाता है. खैर, एनीवे, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. यू नो दैट दिस कैन नॉट बी योर आंसर एज वेल. व्हाई? बिकॉज इन ऑप्शन डी इट्स स्टार्टिंग विद 4 सम इवन से. सही है, इवन से का मतलब है कि मेन आर्गुमेंट पहले दी गई है और ये एडिशनल आर्गुमेंट है, एंड दैट कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. सो वी आर डाउन विद 2 ऑप्शंस, या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा. क्या लग रहा है आपको गाइस? what do you think should be the answer of this particular question? इस पैराग्राफ को किस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि आंसर बेहतरीन हो जाए? क्या लग रहा है? You think B, Z? और बताएं गाइस. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक जवाब दिया भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Z
ने जवाब बिल्कुल सही दिया. Anusha, what do you think? The answer must be B actually. Why? Because the topic sentence जो अगर आप option B के अंदर जो order है वो देखें 2, 4, 3 and 1. If you look at the second sentence first, if you look at 2 first, an aeroplane was a wonderful invention of its time. ये एक introductory statement है. इसके बाद मजीद तफसीलात बयान की गई हैं. Some even say that it was one of the greatest inventions of its time. तो अब आप ये चेक कीजिएगा कि ये कनेक्ट हो रहा है. Its time, all time. Okay, so an aeroplane was a wonderful invention of its time. अपने दौर का बेहतरीन invention. Some even say, तो आप देख सकते हैं ये additional argument है. The fourth one is an additional argument on top of the second one. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आ गया? Third statement. But its use as a main means of transportation was adopted later, only done later. ठीक है. और आखिरी जुमला जो है वो number 1 होना चाहिए. The main thing that propelled the development of aeroplanes as such a fast pace was, however, the first and the second world war, जिसमें कोई शक नहीं है, अगर थोड़ी सी तारीख आपने पढ़ी आपको ये पता होगा कि second world war में खास तौर पे, first world war में भी जर्मनी ने हवाई जहाज इस्तेमाल किए थे, but second world war में गैर मामूली इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और उसके बाद पैसेंजर ट्रैवल आम होना शुरू हो गया था. मतलब people started traveling via airplanes after the second world war. वैसे तो पहले भी हो रहा था बट ज्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. अच्छा, ओके, सो डज दिस क्वेश्चन मेक सेंस? इफ यू लुक एट द सेकंड ऑप्शन, व्हाई डिड वी चूज 2, 4, 3 एंड 1? बिकॉज 2 में पहले हमारा टॉपिक सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, जो मेन थीसिस है हमारा, उसको लिंक किया फोर्थ वाले से, फिर उसके बाद थर्ड की बात की और फिर आखिरी स्टेटमेंट के अंदर हम आर्गुमेंट को कंक्लूड कर रहे हैं. लेट्स लुक एट अनदर सेंटेंस. लुक एट दीज 4 सेंटेंसेस. पहले ऑप्शन छोड़ दो, पहले से इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ो और देखो कि ऑर्डर क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? Yasser says D. What do you think? Usman, Anusha, Rafe? Guys, wake up, come on. Yes, the answer is D. बिल्कुल ठीक बताया. Check करो जरा order क्या है. 4, 2, 1 and 3. At times he placed the pistol under his pillow. Okay, so that's an introductory phrase. At times he placed his pillow, the pistol under his pillow, but he had not done so tonight. Okay, ये tonight ऐसे नहीं लिखा जाता, वैसे TONIGHT is written together. Anyway,
do so tonight, considering it quite unnecessary in a quiet boarding house. Okay, then we link this to the second sentence. It was this probably that prompted him to go to the closet in which he knew that Nicholas Bundy kept a pistol. Okay, then we link this to the first one, which is an indefinable suspicion, which he could not explain, made him uneasy. This ought to have quieted him for the night, but it did not. So basically, what you need to understand is the logical coherence. जिस तरीके से order एक जुमले से दूसरे जुमले तक flow करता है ना, उसको detect करना बहुत जरूरी है. अच्छा, I agree with the fact that students who are new to this concept find jumbled paragraphs a little bit too confusing. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. I understand that, but a little bit of practice is going to make it a lot easier. आप लोगों को इसी तरह error identification के बारे में भी महसूस हो रहा था शुरू की 1-2 classes में, if you remember. But with a passage of time, इंशाल्लाह ये चीजें comfortable होना शुरू हो जाएंगी. If you find a couple of questions difficult at start, don't ponder too much over those questions. मैं recommend करूंगा कि इस वक्त आप क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करें. वैसे आमतौर पे हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन क्वांटिटी, सो दैट द मोर क्वेश्चंस यू लुक एट, द मोर आंसर्स यू अंडरस्टैंड, द बेटर एंड इजियर इट्स गोना बी फॉर यू. इस सिचुएशन को अगर आप देखें, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस. इन फैक्ट हैंग ऑन, मैंने शायद गलती से आंसर यहाँ लिख भी दिया है. फॉरगेट अबाउट द आंसर, ठीक है, for a moment, forget about that. Let's just look at the 4 sentences. जरा दोबारा देखना अनुषा बेटा, चारों सेंटेंसेस के ऑर्डर को जरा एक दफा दोबारा देखना. यू आर क्लोज बट थोड़ा सा जंबल हो रहा है. यस, द आंसर इज डी. द आंसर इज डी. अब जरा समझो क्यों. डी में ऑर्डर क्या है? 1, 4, 3 and 2. फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा. द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टर Kenyon's letter is briefly this. Okay, now this is a sentence which is introducing the concept. आने वाले 3 जुमलों के अंदर explanation of Mr. Kenyon's letter will be provided to you. So पहला जुमला क्या है भाई? Let me just erase this. The explanation of Mr. Kenyon's letter is briefly this. अब आगे पढ़िएगा. 4th sentence. He had an interview with Dr. Fox in which he had so severely censured the doctor that the latter finally became angry and defiant and intimidated. ये हो गया चौथा जुमला. फिर इसको चौथा जुमला. He visited South, his visits South had not done any good. He had an interview with Dr. Fox. ये इससे connect हो गया. In which he had so severely censured the doctor that the latter, अच्छा latter मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, formal latter. इस particular situation में क्योंकि he पहले mention हुआ है, Dr. Fox बाद में mention हुआ है, तो he is former and Dr. Fox is latter. He had an interview with Dr. Fox in which he had so severely censured the doctor that the latter finally became angry and defiant and intimidated. और फिर उसके बाद हम इसको connect करेंगे हमारे दूसरे जुमले से. If pushed to extremity, he would turn against Kenyon and make public the conspiracy in which he had joined together with Kenyon's motive in imprisoning his life. अब आप इसको चेक कीजिएगा जरा कि पॉइंट नंबर 3, जो सेंटेंस नंबर 3 है, उसके जो आखिरी पार्ट है, एंग्री, डिफाइंट एंड इंटिमिडेटेड, ये तीनों बातें इससे कनेक्टेड हैं. तो हुआ क्या? लेट्स लुक एट दिस वन मोर टाइम. हुआ क्या? The explanation of Mr. Kenyon's letter is briefly this. They are introducing the concept. His visit South had done no good. Okay, so basically
वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट कि साउथ जो उसने विजिट किया था, ठीक है, दैट वाज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल. He had an interview. अब उसकी मजीद तफसीलात बयान की जा रही हैं कि ये जो साउथ गया था ये क्यों गया था. डॉक्टर फॉक्स के साथ उसका एक इंटरव्यू था जिसके लिए वो वहां गया था. एंड इन दैट इंटरव्यू he made Dr. Fox, the latter in this situation, he made Dr. Fox very angry, defiant and intimidated, which is why he was pushed to extremity, which basically means that he felt very extreme situations and emotions. Okay, so the order is basically in option D. ये आपका आंसर होना चाहिए 1, 4, 3 and 2, जिसके अंदर एक कोहेरेंट अंदाज में आपको बताया गया है कौन सा ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया. यहाँ पे 4 की बजाय 5 जुमले आपको दिए जा रहे हैं एंड यू आर गिवन 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. इसको आप परम्यूटेशंस कह सकते हैं. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा गालिबन. तो ये परम्यूटेशंस हैं 4 मुख्तलिफ. अब आपको ये सोचना है कि इन चारों ऑर्डर्स में से कौन सा ऑर्डर बेहतरीन है. याद रखिएगा जिसके अंदर प्रोनाउंस प्रीडोमिनेंटली इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो इनिशियल सेंटेंसेस नहीं हो सकते. जिसमें कंजंक्शन, खास तौर पे कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन बुनियादी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. ठीक है, इन बातों का जरा ख्याल रखिएगा. फिर सोचें जरा कि कौन सा ऑर्डर होना चाहिए. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करें बेटा. नो, करीब हो वैसे, थोड़ा सा जंबला पूरा है. यस, द आंसर इज सी. ए बी सी डी ई. इत्तेफाकन इस केस के अंदर जैसे हम लोग एरर आइडेंटिफिकेशन में करते थे ना, नो एरर, जंबल्ड पैराग्राफ्स में भी कभी कभार होता है. जैसे पिछले हफ्ते हम संडे को जब एक्चुअल पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें लिखा होता है नो चेंज, राइट, विच इज नो एरर. तो अगर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मतलब कोई गलती नहीं है तो फिर आपको उसको एज इट इज छोड़ना चाहिए, आपको उसको चेंज नहीं करना चाहिए. नाउ आई टोल्ड यू अ कपल ऑफ मिनट्स अगो कि यू हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. अब जरा देखिएगा पहला जुमला क्या है. Environment Education Unit of Center of Science and Environment has always been working towards providing easy to understand reading material. ठीक है, तो मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. एक इदारा है Environment Education, let me just write this down, Environment Education Unit of Center and of Center for Science and Environment. It's a big name. It's the name of an organization. ये organization हमेशा से काम करता रहा है in trying to provide easy to understand reading material, के आसान मटेरियल प्रोवाइड करे. बी देखिएगा, देयर न्यू पब्लिकेशन. याद रखिएगा दे आर वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल. अब देखिएगा इनकी न्यू पब्लिकेशन ऑन दिस सब्जेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू लेंड टीचर्स अ हेल्पिंग हैंड, टीचर्स को असिस्ट करने के लिए. इट अनफोल्ड्स 2 सेक्शंस. 2 सेक्शंस पे गौर कीजिएगा. एक है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताया गया हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल. एंड द सेकंड थिंग आप देख सकते हैं सी और डी इंटरकनेक्टेड है. The second thing, क्योंकि यहाँ पे 2 sections की बात हो रही है ना, climate change, how to make sense of it all, and natural resources, how to share and care. So these 2 sentences, मतलब C and D must be together, okay, which you can see here in option C. However, as you know, E जो है वो last option होना चाहिए because contrast conjunction है, उससे आप start नहीं कर सकते. खैर किसी ऑप्शन के अंदर E शुरू में दिया हुआ भी नहीं है सिवाय ऑप्शन D के, और D तो बिल्कुल ही सबसे मेरे ख्याल में डी सबसे कमजोर ऑप्शन है. उसकी वजह यह है कि डी ऑप्शन को अगर आप देखें तो पहला जुमला बी है जिसमें देयर न्यू पब्लिकेशन से बात शुरू हो रही है, व्हिच इज अ प्रोनाउन एंड यू डू नॉट नो हु दे इज, सो दैट कैन बी द आंसर. उसके बाद फिर अचानक से हाउएवर डाल दिया तो डी तो बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन ई आ रहा है ना, मतलब सेंटेंस ई आ रहा है, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन व्हाट रियली हेल्प्ड यू टू गेट टू द राइट आंसर वाज द फैक्ट that C and D must be interconnected, because यहाँ 2 sections की बात हो रही है जिसमें से पहला section C में mention हुआ है and दूसरा section D में mention हुआ है, और इन दोनों का interconnected होना जरूरी है. तो basically there's only one option जिसमें C और D एक साथ हैं, और वो आपको option C नजर आ रहा है, which is why
सी मस्ट बी योर आंसर। और जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई मुख्तसर सी जंबल पैराग्राफ्स के हवाले से, वो सारी की सारी यहाँ करेक्टली अप्लाई हो रही हैं। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, इसको भी गौर से देखना। 4 डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, देखिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, मेरे ख्याल में पिछले जुमले से भी ज्यादा आसान है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का नजर आ रहा है, वेरी गुड उस्मान। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इज a famous Japanese rock garden is the Ruanji in the northwest Kyoto, Japan। ठीक है, yes, A is the answer। Why? Because introductory sentence आपको, ये देखें सारे ऑप्शंस में, मतलब B, C, D, E सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको उसी रॉक गार्डन की मजीद तफसीलात बयान की जा रही हैं। इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शन ए में, जहां लिखा गया है एक फेमस गार्डन जो है वो क्योटो जापान में है। ठीक है, अब आगे उसकी मजीद तफसीलात बयान करना जरूरी है कि भाई उस रॉक गार्डन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो फिर आप देखिएगा सी, द गार्डन, which garden? This garden they're talking about here, Ruanji। Okay, the garden is 30 meters long from east to west and 10 meters from north to south। तो ये हो गया second sentence। So this is 1, this is 2। फिर उसके बाद there are no trees, just 15 irregular shaped rocks of varying sizes, some arranged by gravel sand that is raked every day। ये third हो गया। उसके बाद आप आ जाए, the rocks of various sizes are arranged on small white pebbles in 5 groups, each comprising 5, 2, 3, 2 and 3 rocks। And then finally, the garden contains 15 rocks arranged on the surface of white pebbles in such a manner that visitors can see only 14 of them at once from whichever angle the garden is viewed। अच्छा, so what you need to understand is कि यहाँ पे अब आप ये देखिएगा, ई को हमने फर्स्ट क्यों मेंशन किया, ये देखिएगा क्यों, बिकॉज ई में पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेरिइंग साइजेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रॉक्स ऑफ वेरिइंग साइजेस, ये ई में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ई के बाद वी चोज बी, लाइक दिस इज 3, दिस इज 4। व्हाई? बिकॉज वही रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस की मजीद तफसीलात बयान की जा रही हैं। ओके, you can see there's a coherence, there's a connection between 3 and 4, because in 3 they introduce the concept of the fact that in this garden there are no trees, there are just 15 irregular shaped rocks of varying sizes, और उन rocks के बारे में मजीद तफसीलात B में दी गई हैं। And then finally the concluding remarks, the garden contains 15 rocks arranged on the surface of white pebbles in such a manner that visitors can see them। तो ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि 1 के अलावा जो बी सी डी ई है, ये जो चारों जुमले हैं, ये चारों जुमले गार्डन के बारे में ही मजीद तफसीलात बयान कर रहे हैं, लेकिन इन चारों जुमलों को स्ट्रक्चर करना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई, खैर आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए पहला जुमला है, एंड दैट रियली हेल्प्स। आई एम प्रीटी श्योर आप में से आई थिंक उस्मान ने सबसे पहले जवाब दिया था, तो आई एम श्योर उस्मान ने इस बात को भी कंसिडर किया होगा कि ए, सेंटेंस ए जो है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन वेयर ऑप्शन, मतलब सेंटेंस ए इज द फर्स्ट सेंटेंस of the paragraph, so that really helps। Okay, let's look at this one। This is very simple, you'll get a hang of it। I'm sure वक्त के साथ साथ ये sentences आसान होते जाएंगे, शुरू में थोड़ा difficult लग रहा होगा, relax करो और से देखो sentences को। Very good।
right? Okay, Usman, I want you to explain how you got to option B. अनम्यूट करो, मुझे जरा समझाओ. आंसर तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, मुझे जरा थोड़ा सा लॉजिक समझाएं कि आप ऑप्शन बी तक, जो कि आपका आंसर है, कैसे पहुंचे. सर इसके अंदर भी सर लास्ट वाला लॉजिक ही लगा है, क्योंकि सर कोई और ऑप्शन है नहीं, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, द ओरिजिन ऑफ जैन बुद्धिज्म, यही इंट्रोडक्टरी वो लग रहा है मुझे सेंटेंस. वेरी गुड, ये ऑप्शन सिलेक्ट किया. ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है. अच्छा, अगर आप देखें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि द ओरिजिन की बात हो रही है ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म. आई मीन फॉर अ कॉमन यूजर, ज़ेन बुद्धिज्म मे बी अ वेरी यूनिक वर्ड. तो ओरिजिनेट कहां से हुआ, कैसे हुआ, कौन सी सदी में हुआ, वो बताया जा रहा है. The origin of Zen Buddhism is ascribed to the Flower Sermon, the earliest source, which comes from the 14th century. This is our first sentence. I'm just going to write this down. Uske baad, it is said that Gautama Buddha gathered his disciples one day for a dharma talk. ठीक है, this is the second sentence. When they gathered, अब ये बात आपको पता है कि Gautama Buddha gathered his disciples, ये पहले होना चाहिए और फिर ये उसके फौरन बाद होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैदर होने का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सेंटेंस बी में. दे आर टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्धा गैदरिंग हिज डिसाइपल्स. डिसाइपल्स आर बेसिकली पीपल हु फॉलो यू, राइट? आई मीन ऑन अ रिलीजियस नोट. ठीक है, तो बुद्धिज्म तो स्टार्ट ही गौतम बुद्धा से हुआ ना. तो ये हुआ. उसके बाद आपको ये कहना है व्हेन दे गैदर्ड टुगेदर द बुद्धा वाज कंप्लीटली साइलेंट एंड सम स्पेक्युलेटेड दैट परहैप्स द बुद्धा वाज टायर्ड और इल. तो वो जब जमा हुए तो गौतम बुद्धा वाज बिल्कुल साइलेंट एंड ज्यादातर कुछ लोगों को लग रहा था कि ही वाज या तो बीमार या फिर ही वाज टायर्ड. ये दोनों बातें इंटरकनेक्ट हो गई. उसके बाद द बुद्धा साइलेंटली हेल्ड अप. अब यहां आप देख सकते हैं साइलेंस का जिक्र है. ही वाज कंप्लीटली साइलेंट, ये साइलेंस का जिक्र है. इसको हमने कनेक्ट किया इसके साथ. द बुद्धा साइलेंटली हेल्ड अप एंड twirled a flower and twinkled his eye. Several of his disciples tried to interpret what this meant, though none of them was correct. और फिर finally one of Buddha's disciples, Mahakashyapa, whatever, silently gazed at the flower and broke into a broad smile. Okay, so these are interconnected. बिल्कुल वही लॉजिक इस्तेमाल हो रही है. This is gonna get easier with time. ये वाला सेंटेंस देखिएगा जरा आराम से. सीक्वेंस देखें. थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि चारों ऑप्शंस के अंदर ए ऑप्शन पहले नजर आ रहा है आपको, राइट? तो ए तो पहले होगा. You're close, not exactly there, यासिर. थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हो गया आपसे, थोड़ा सा. दोबारा देखिएगा. अच्छा, आपने कहा सी. एक मिनट, यासिर ने शायद सी कहा था ना. हाँ, यासिर ने सी कहा. सी में पता है गड़बड़ क्या है? ए तो आपने मतलब सारे ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा है ए तो पहले आएगा. द पोस्ट इलेक्शन क्राइसिस इन केनिया रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड. मेनी कंट्रीज रिस्पॉन्डेड. ये सेकंड कैसे हो सकता है? रिस्पॉन्ड करना तो यकीनन किसी एक्शन के, मतलब रिस्पॉन्ड इज अ वर्ब ऑफ रिस्पॉन्स, राइट? जवाब देना. तो रिस्पॉन्ड कैसे किया उन्होंने? रिस्पॉन्ड से पहले कोई और भी तो बात होनी चाहिए. सोचे जरा, शाबाश. नो, you guys are close but you're not hitting the nail on the head. The answer is D. D आंसर होगा. अब जरा सुनिए क्यों. The post election crisis in Kenya remains unresolved. इंट्रोडक्टरी जुमला है, ठीक है. खैर, चारों ऑप्शंस में ए ही पहला जुमला है. The damage being done to the country's economy is severe. अब हमें क्राइसिस की मजीद तफसीलात बयान की जा रही हैं कि क्राइसिस है. क्राइसिस मींस अ मेजर कैलामिटी, अ मेजर प्रॉब्लम. क्राइसिस है शदीद.
डैमेज जो है वो सिवियर है, टूरिज्म अफेक्ट हुआ, हॉर्टिकल्चर अफेक्ट हुआ, अदर इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन ट्रेड बियॉन्ड द केनियन बॉर्डर आर रीलिंग, ठीक है, रीलिंग मतलब दे आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। ये हो गया दूसरा जुमला। उसके बाद आप आ जाए थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बात इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है कि इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई हैं बहुत सारी, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर वगैरह, और फिर उसके बाद इसको कनेक्ट किया किससे, लाइवलीहुड से, along with investments through the region are threatened and collapsing। ये तीसरा हो गया। as the situation in Kenya escalated, ये हो गया, एक मिनट, let me just write this down, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद अब as the situation in Kenya escalated with murders, rapes, burning of property, looting and the displacement of thousands of people throughout the country, the international community was urged to help, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कौन सा पॉइंट आएगा, many countries responded providing essential humanitarian assistance and logical support। for this I and many other Kenyans are very grateful। अब आप ये देख सकते हैं कि 4 और 5 में भी एक बड़ा लॉजिकल कनेक्शन है। तो as you can see, if you see the arrows that I made, what did I do? 1 2 3 4 and 5। now you need to see 2 और 3 के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंड 4 and 5 के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, which tells you कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि सर हमें कैसे पता चलेगा 2 3 में से पहले कौन सा आएगा और 4 5 में से कौन सा पहले आएगा, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर मैं ए के बाद ई लिख दूं, वैसे एक ऐसा ऑप्शन है, ए के बाद अगर मैं ई लिख दूं, तो ये बात हमें बता रही है, ई का स्टार्ट देखिएगा, एज द सिचुएशन इन केनिया एस्केलेटेड विद मर्डर्स, रेप्स वगैरह, दिस सीम्स टू बी एन एडिशनल डिटेल, नॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। उससे बहुत बेहतर जुमला ये नजर आ रहा है मुझे, ई से पहले बी आना चाहिए ऑन एनी अदर डे, राइट। सो ए बी देन डी, ठीक है, देन ई एंड देन सी। ऑर्डर इस तरीके से होगा, आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स बताएंगे, फिर उसके बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी, इसको देखिएगा। बेटा अभी आपने कहा, यासिर आपने कहा सी में अगर आप गौर करें, 5 सेंटेंसेस पहले पढ़े, उसके बाद अगर आप गौर करें तो ई जो है वो आखिरी सेंटेंस के तौर पे दिया हुआ है। इनफैक्ट 3 ऐसे ऑप्शंस हैं, ए बी और सी, जिसके अंदर ई आखिरी जुमले के तौर पे दिया हुआ है, और तीनों ऑप्शंस के अंदर ई जो है वो आखिरी सेंटेंस के तौर पे इंतहाई अब्रप्ट लग रहा है। मतलब आप यूएस मार्केट वगैरह की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम टीसीएस है, आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरी बात डिस्कस करने के बाद ये कहें कि द बीपीओ इंडस्ट्री एंड मेनी medium sized software exporters are reportedly operating on thin margins, so don't you think option E is a very abrupt ending to the paragraph?
Logically speaking, option D would be your answer. D आपका आंसर होगा. Correct order है 1. Let me just write this down. 1, 2, 3, 4 and 5. ये ऑर्डर है. अब इस ऑर्डर में जरा पढ़िएगा जुमलों को. The BPO industry and many medium-sized software exporters are reportedly operating on thin margins. Introduce क्या concept? Most IT companies have been grappling with more mundane problems. ठीक है, mundane का मतलब होता है trivial. ठीक है, mundane problems such as a high level of attrition amidst rising wage costs and inability to secure the right type and number of American visas. ये second sentence हो गया आपका. The US market will continue to be a dominant one in the foreseeable future. The rupee could become even stronger. अब आप ये देखिए, A जो है वो एक explanation है E और D का. मतलब E और D में जो हमने बात की है, अब आप ये देख सकते हैं ना भाई, rising wages and high level of attrition, ये directly connected है इस बात से कि भाई US market जो है वो dominant रहेगी in the foreseeable future. मतलब जितना predictable future है उसमें. A greater recourse to hedge as well as striving for multi-currency revenue streams automatically suggests itself, and then already one company, TCS, by resorting. तो basically A, B में जो बात की गई है उसको explain किया जा रहा है C में. तो आप देख सकते हैं A, B और C तो तीनों order में होने ही चाहिए. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3, 4 and 5 are all in order. ये तीनों sentences A, B और C तीनों ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है और B के बाद ही C आना चाहिए. तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन स्टार्ट हम E से करेंगे. और यहाँ पे भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हमने इस्तेमाल किया. जो E है सेंटेंस E, वो अगर मैं एंड में डालूं अपने पूरे पैराग्राफ के तो बात बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग लग रही है. लग नहीं रहा कि ये पैराग्राफ का दुरुस्त एंड है. ओके, सो अगेन practice is going to make it easier for you. Look at this sentence. अब आप इसको देखो जरा. The economic crisis hadn't become grave then. Can sentence B be the first sentence of the paragraph? No, it can't. Can sentence C be the first sentence of the paragraph? Sentence C हो सकता है? नहीं हो सकता sentence C. But today the world is in the midst of of the biggest economic crisis since 1929. Option C जो है, मतलब sorry, sentence C जो है वो आपका पहला जुमला नहीं हो सकता पैराग्राफ का. सोचिए जरा. Anusha is right. The answer is B. Paragraph is in order. Last March, I was invited to present a paper on the topic of whether the mistakes of the 20th century would be repeated in the 21st century as well. The economic crisis hadn't become grave then, but today the world is in the midst of the biggest economic crisis since 1929. The key difference between then and now is that the old power structures have finally disappeared. Now even the US is pleading for financial help from China. So you can see there's a logical coherence between these sentences. Start किया गया इस बात से कि भाई पिछले मार्च में मुझे बुलाया गया था, मुझे इनवाइट किया गया था कि मैं एक पेपर प्रेजेंट करूं फलाना टॉपिक पे कि भाई 20वीं सदी और 21वीं सदी के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. फिर आगे हमने रिपीट किया, समझाया बात को कि उस वक्त की सिचुएशंस क्या थी और आज के सिचुएशन से उनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है. And then we pointed out the differences, ending up the fact that now even the US is pleading for financial help from China. Okay, so there is
logical coherence between these sentences. Let's look at this one. Very simple. छोटे छोटे sentences हैं, easy to understand. अब आप देख लीजिए ऑप्शन डी पहला जुमला नहीं हो सकता. मतलब सेंटेंस डी कैनॉट बी द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ. पीपल स्टार्टेड फियरिंग अ फैमिन. उसके बाद एक मिनट, आपने क्या कहा उस्मान, मैं जरा चेक करूं. आपने कहा सी, एक मिनट देखिएगा. पीपल स्टार्टेड फियरिंग अ फैमिन. उसके बाद आप कह रहे हैं फार्मर्स लुक्ड एंक्शियसली फॉर द नेक्स्ट मॉनसून. फिर आप कह रहे हैं सो नो ग्रेन कुड बी सोन बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स. कैन नॉट बी द आंसर बेटा. उसकी वजह यह है कि ये पहले, मतलब ये 1 और ये 2, मतलब ऑप्शन ई पहले और ऑप्शन डी बाद में नहीं हो सकता. उल्टा होना चाहिए. डी शुड कम बिफोर ई. आपके ऑप्शन सी में दरअसल ई पहले आ रहा है और डी बाद में आ रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. क्योंकि मतलब सो जो है वो कनेक्शन है ना, कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन है ना, तो यकीनन वो पिछली बात से कनेक्टेड होगा. और ई जो है वो डी से पहले वाली बात है नहीं. The answer to the question is B. B में क्या हो रहा है जरा देखिएगा. 1, 2, 3. Hang on, let me see this. 4 and 5. Oh, sorry. 5. Okay, this is the order. If you look at this, the monsoon failed and water tanks became almost empty. पहला जुमला हो गया. So no grain could be sown by the farmers in their fields. क्यों? Because the water tanks were almost empty. Now you can see C जो है वो D से पहले लिखा हुआ है. ये जो D में जो so लिखा हुआ है ना, cause and effect conjunction, यही हमें बता रहा है कि ये पिछली बात से connected होना चाहिए. तो पहला जुमला क्या है? The monsoon failed and water tanks became almost empty, which is the problem. इस problem की वजह से no grain could be sown by the farmers in their fields. People started fearing a famine. ये आ गया तीसरा जुमला. क्यों? क्योंकि logically 2 and 3 are interconnected. गौर से देखिएगा, जब बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो जाहिर है फाके होंगे. famine means भूख, right? ये 2 और 3 मतलब इंटरकनेक्ट हो गए. बेसिकली D और A डायरेक्टली कनेक्ट हो गए. उसके बाद हमने क्या देखा? Farmers looked anxiously for the next monsoon. Why? Because that is the solution. The problem was पानी की कमी थी, हमने बीज नहीं बोए. तो now we are looking forward to the next monsoon. कि भाई next monsoon आएगा तो हमारी problem solve होगी. और फिर finally monsoon turned out to be unusually abundant and the danger was averted. तो ये हमारा concluding situation है कि भाई monsoon जो है वो आया और काफी abundant था. मतलब unusually abundant से मुराद है कि आमतौर पे जितना monsoon होता है उससे ज्यादा ही था. And our danger was averted. Averted का मतलब prevented. हमारा जो problem था वो हल हो गया. So कहने का मकसद ये है कि of course ये मैंने मेरे ख्याल में आपसे के साथ 10-12 जुमले डिस्कस किए हैं. इन 10-12 जुमलों में यकीनन आपको प्रॉब्लम महसूस हुई होगी. But long story short, what you need to understand is the more practice you do, the better it is going to be for you. So what I'm going to do is I'm going to prepare a test for you guys. सही है? I'll give it to you tomorrow inshallah. It will have about 10-15 questions of the same sort. You have to practice these sentences. Jumbled paragraphs are very important. कुछ cases के अंदर जैसे आपने मुझे खुद बताया, there was no need for the order to be changed, but in most cases we have to change the order, and there are a lot of clues given to us. उन clues को detect करके ही हम correct answer तक पहुंच सकते हैं, but of course time लगेगा उसमें. ठीक है? कल I hope अब तक आप सबको workbooks मिल चुकी होंगी. कल लाजमी तौर पे हम workbook से उस डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. टेस्ट हम लोग पिछले हफ्ते कर रहे थे रिटन सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का. पहला टेस्ट हम कवर कर रहे थे. 4 पैसेजेस में से 3 मैंने आपको कवर करवाए थे खुद. एक आपको मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, वो प्लीज जरा कंप्लीट कर लीजिएगा इफ यू हैवंट डन इट सो फार.
please make sure that you complete that test, and then we will move on to another test of writing, or if you wish, I can even move on towards a reading comprehension passage. क्योंकि reading comprehension भी हमें discuss करना शुरू कर देना चाहिए. We're in October now. Okay. Janita, beta, I think you should immediately contact the admin and sort that out, because it's high time you get the material now. Okay, please speak to the admin and get the material. It's very important. Okay, and tomorrow we will. I expect you to complete the test that we started last Sunday. Okay, do it at home. Homework के तौर पे करो. मुझे कांटेक्ट करना. हम लोग पहले उन सवालों को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक दूसरे राइटिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल, if we have time. Okay. Chalo, thanks a lot, guys. I'll see you inshallah tomorrow. Take care.